students, today I'm going to explain you chapter 2 of class 3rd. The name of the chapter is Indian Festivals. In this particular chapter, we are going to study about what are religious festivals, what are harvest festivals, and also about national festivals. So let's study. So in intro, फेस्टिवल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स. फेस्टिवल्स हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज इट गिव्स अस अ रीज़न टू सेलिब्रेट एंड टू गेट together with all the relatives and friends, and it gives us excuse to become happy again. Okay, so people follow religions, speak different languages and observe various cultures. लोग जो होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं और अलग अलग कल्चर को प्रमोट करते हैं. इस दिन फेस्टिवल्स के दिन हाउ दे बिकम हैप्पी बिकॉज दे वेयर न्यू काइंड ऑफ क्लॉथ्स, दे डू डांस, दे एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड ईट स्पेशल डिशेज टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स. दिस इज हाउ दे यूज टू सेलिब्रेट इट. एंड फॉर सम festivals examples are Diwali Mela, Baisakhi Mela, Tej Mela. These are some of the festival examples. Some of fairs held in different parts of the country on such occasions. Let's study some important festivals and ways of celebrating them. So broadly we are going to study about 3 festivals: religious festivals, harvest festivals, and the last one is national festivals. First, we have religious festivals. Religious festivals are those festivals in which particular kind of religion follower people used to celebrate. For example, the first festival we have is Diwali. Diwali is celebrated by Hindu festivals. Hindu people, those people who used to follow Hindu religion, only those people used to celebrate this festival. Such festivals are called religious festivals. Okay, so first we have Diwali. So Diwali is also known as Festival of Lights. Okay, because they used to use diyas and all to make light in everywhere. That's why this is also known as Festival of Lights. It is celebrated because on this day Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years exile. ठीक है, माना जाता है कि जो राम थे वो अपने 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए थे. ठीक है. People whitewash and clean their homes and offices before Diwali. Obviously on festivals people used to clean their houses and all. Earthen lamps and candles are lighted on Diwali. ठीक है, यानी कि earthen lamps और candles जलाया जाता है जिससे सब जगह रोशनी हो जाती है. लोग क्या करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी और गणेशा की पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन, और डेफिनेटली न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और बहुत तरीके की स्वीट्स और डिशेस के साथ अपना फेस्टिवल एंजॉय करते हैं. बिजनेसमैन सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर ऑन दिवाली. ठीक है, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो दिवाली पर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव रक्षाबंधन. So on this day, sisters tie Rakhi, thread on the right wrist of their brothers and pray for their safety. Brothers also give them gifts and money. यानी कि इस दिन जो बहनें होती है वो भाई की जो राइट कलाई होती है उसके ऊपर राखी बांधती है, और इसके बदले में जो ब्रदर्स होते हैं वो उन्हें गिफ्ट्स देते हैं और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं. ठीक है. Next we have Dashera. This festival is celebrated as the day on which Lord Rama killed Ravan. यानी कि ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो लॉर्ड राम थे उन्होंने रावण को मारा था. ठीक है, उनकी याद में दशहरा फेस्टिवल्स को मनाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजयदशमी. ठीक है, यानी कि दशहरा को विजयदशमी फेस्टिवल भी बोला जाता है. ये मतलब इस फेस्टिवल को कहा जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है. ठीक है, यानी कि रावण जैसा एक दुष्ट इंसान मर चुका था और राम ने उसे मार दिया था, तो इसलिए ये फेस्टिवल्स मनाया जाता है. इट इज सेलिब्रेटेड बर्निंग द एफिगीज ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण. ठीक है, यानी कि इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं रावण को जलाकर, मेघनाथ को जलाकर और उसके भाई कुंभकर्ण को जलाकर उनके पुतले बनाए जाते हैं, उनको जलाया जाता है. दिस इज हाउ दे यूज्ड टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल. ओके. रामलीला विच शोज द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम इज परफॉर्म्ड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया फॉर 10 days. यानी कि जो रामलीला है जो कि 10 दिन तक मनाई जाती है, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में. ठीक है, जो कि लॉर्ड राम की लाइफ को, उनकी लाइफ स्टाइल को परफॉर्म करती है. ठीक है. On this day in West Bengal, दुर्गा पूजा is celebrated with great pomp and show. वेस्ट बंगाल की साइड यानी कि ये जो रामलीला थी नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है, और वेस्ट इंडिया में क्या, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है ग्रेट पॉम्प और शो के साथ. ठीक है. गॉडेस दुर्गा को वर्शिप किया जाता है 3 दिन तक. गॉडेस दुर्गा को वो वर्शिप करते हैं, और आखिरी दिन जो आइडल्स होते हैं गॉडेस दुर्गा के, उन्हें रिवर या सी में ले जाकर उन्हें रिवर या सी पर ले जाया जाता है. ठीक है, इससे वो उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं.
Next, Eid ul Fitr. Muslims celebrate Eid ul Fitr and Eid ul Zuha during the month of Ramzan. Muslims keep fasts from sunrise to sunset. At the end of Ramzan comes Eid ul Fitr. People go to mosques and offer namaz. They embrace and wish each other, saying Eid Mubarak. A special sweet called Chamaiya इज प्रिपेयर्ड, यानी कि ईद उल फितर जो है मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। अभी तक जो हमने देखे वो सारे हिंदू के फेस्टिवल्स या दूसरे रिलीजन्स के फेस्टिवल्स थे, ये मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है, ये सनराइज से सनसेट तक फास्ट रखते हैं 30 डेज तक, और उसके बाद अपनी नमाज को मतलब वो लोग नमाज जाते हैं और 30 डेज तक वो सनराइज से सनसेट तक फास्ट रखते हैं, उसमें कुछ खाते नहीं, और उसके बाद उनका एक फेस्टिवल आता है ईद, ठीक है, जिसमें वो सबको ईद मुबारक कहकर विश करते हैं, और एक स्पेशल डिश समय यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। ईद उल जुहा को हम बकरा ईद भी बोलते हैं, ठीक है, और ये अपने शीप्स और गोट्स को सेक्रीफाइस कर ये इस फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गुरुपुरब। गुरुपुरब 6 रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये क्या होता है, ये 10 गुरुज का बर्थडे होता है इस दिन, ठीक है, इसलिए इसको गुरुपुरब बोला जाता है, क्योंकि उनके 10 गुरु हैं, उनके बर्थडे की याद में वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। Religious processions are taken out. People visit the gurudwaras and offer prayers. Langars are held by sharbat or sweetened drinks and distributed at all gurudwaras. ठीक है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं और अपनी प्रेयर्स वहाँ पर प्रेयर करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं अपने गुरु की। और लंगार एक जगह होती है वहाँ पर, जो आप एक तरह से किचन बोल सकते हो, जहाँ पे सारी डिशेस वगैरह खाना वगैरह बनता है। तो वहाँ पर लंगार में जो है नींबू शरबत और स्वीट ड्रिंक्स को ऑफर किया जाता है सभी गुरुद्वारास को, ठीक है, जो भी वहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट वी हैव बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बुद्धिज्म के बर्थडे वाले दिन मनाई जाती है, इस दिन बुद्ध का बर्थडे होता है, ओके। लॉर्ड गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एट बुद्ध पूर्णिमा। पीपल ऑफर स्पेशल प्रेयर्स एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स ऑन दिस डे, ठीक है, यानी कि एवरीवन यूज्ड टू शेयर ग्रीटिंग्स एंड क्लीन द हाउसेस, वेयर गुड क्लोथ्स। दिस इज कॉमन थिंग विच एवरीवन यूज्ड टू सेलिब्रेट ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल। नेक्स्ट वी हैव क्रिसमस। Christmas celebrate the birthday of Jesus Christ as Christmas. It is celebrated on 25th December every year, ठीक है। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थडे होता है, 25 दिसंबर को बनता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशल तरह की प्रेयर की जाती है चर्च में, ठीक है, यानी अक्रॉस द कंट्री, यानी कंट्री में जितने भी लोग क्रिसमस मनाते हैं वो सब एक स्पेशल तरह की प्रेयर चर्च में ऑफर करते हैं। ट्रीज को अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, जिसको हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम इसे गिफ्ट्स और स्वीट्स के साथ सबके साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हमने देख लिया रिलीजियस फेस्टिवल्स पर्टिकुलर काइंड के रिलीजन लोग सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, जो कि फार्मर सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी कंट्री में, ठीक है। ये एक टाइम होता है जब जो क्रॉप्स होती है वो उग गई होती है, ठीक है, क्रॉप्स इज रेडी फॉर रीपिंग। द फेस्टिवल डेट मार्क द चेंज ऑफ सीजन आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, यानी कि जब क्रॉप्स होती है वो पूरी पक जाती है, उनको निकालने का टाइम आ जाता है, तो सीजन चेंज होता है, यानी कि जो चेंज इन सीजन्स होते हैं, जब सीजन का चेंज होने का टाइम होता है, बेसिकली फार्मर्स के लिए होता है ये, तब उस फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है, ठीक है। The festivals are known by different names and celebrated in different ways across the country. अलग अलग नाम से अलग अलग पूरी कंट्री में जाना जाता है फेस्टिवल, ठीक है। जैसे कि होली, ठीक है, जैसे हमारे पास होली इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ओके, सो होली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोला जाता है। ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है। इट इज मार्क द एंड ऑफ विंटर एंड बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन, ठीक है, यानी कि जब होली आता है तब विंटर सीजन खत्म हो जाता है और समर सीजन की शुरुआत होती है, ठीक है। यानी कि ये क्या मार्क कर रहा है, ये चेंज इन सीजन मार्क कर रहा है, विंटर खत्म हो गया, समर शुरुआत आ रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ओके। People throw colors, water, apply गुलाल on each other and exchange greetings, ठीक है, यानी कि लोग पानी फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंकते हैं और ग्रीटिंग वगैरह एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव बिहू। बिहू क्या एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलरली असम में मनाया जाता है। स्पेशल बिहू डांसेस आर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द स्टेट, यानी कि स्पेशल बिहू डांस ऑर्गेनाइज किया जाता है। यंग गर्ल्स जो होती है वो स्पेशल असमीज क्लोथ्स पहनती है और जगह जगह पर डांस करती हुई दिखती है। फॉर एग्जाम्पल दिस पिक्चर इज शोइंग यू मेरे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। नेक्स्ट वी हैव पोंगल,
ठीक है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू असम में मनाया जाता है, और जो पोंगल होता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में, रिमेंबर दिस, ठीक है। ये जो फेस्टिवल होता है 3 दिन तक मनाया जाता है, और जो पहला दिन होता है उसमें हम रेन गॉड की वर्शिप करते हैं, सेकेंड डे में सन गॉड की वर्शिप करते हैं, ठीक है। आप वही सही समझ रहे हो, ये सन वही है जो पूरी अर्थ को लाइट प्रोवाइड करता है, ये वही बारिश है जो होती है आसमान से गिरता है, कोई गॉड पर्टिकुलर गॉड का नेम नहीं है, यानी कि वो हमें वो हम कह सकते हैं कि वो नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले दिन वो बारिश की पूजा करते हैं, दूसरे दिन वो हमारे सन की पूजा करते हैं, और तीसरे दिन वो काऊ की पूजा करते हैं, ठीक है। स्पेशल पोंगल राइस बनाए जाते हैं इस दिन, ठीक है। उनका नाम भी पोंगल राइस पड़ गया क्योंकि स्पेशल वो इसी फेस्टिवल के लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश इस फेस्टिवल्स को संस्कृति बोला जाता है, ठीक है। आई एम सॉरी, संक्रांति बोला जाता है पोंगल फेस्टिवल को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। इट मार्क्स द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम विंटर टू समर, इस विंटर से समर सीजन होने का जो चेंज है वो मार्क कर रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमें चेंज इन सीजन का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट वी हैव ओणम। ओणम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरला में मनाया जाता है, और बिहू असम में मनाया जाता है। स्पेशल डिशेस यहाँ पर प्रिपेयर की जाती हैं और बनाना लीव्स पर सर्व किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बनाना का जो लीफ होता है उसके ऊपर जो फूड होता है वो सर्व किया जाता है। स्नेक बोट रेसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ठीक है। यानी कि स्नेक बोट रेसेस यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर रेस कॉम्पिटिशन है जो इस फेस्टिवल के आसपास होता है, ठीक है। हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल्स देख लिया जिसमें चेंजेस सीजन के आइडेंटिफिकेशन के उस पर मनाया जाता है, और उससे पहले हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स देख लिए जो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो ऑल ओवर कंट्री मनाया जाता है, नो मैटर which state that person belongs to, no matter which religion that person follows. The only thing matters that if that person belongs to a particular country, then entire country follows that particular festival occasion, we can say. Okay, so this national festivals are celebrated by entire country. We are going to study about Indian national festivals. So first national festival we have Independence Day. Okay, so India became independent on 15th August 1947. So Independence Day is celebrated every year on 15 August. Okay, the Prime Minister of a country hosts a national flag at Red Fort in New Delhi. यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट में होस्ट करता है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। वो हमारे नेशन को एड्रेस करता है। पीपल सिंग द नेशनल एंथम एंड अदर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। पीपल नेशनल एंथम को सिंग करते हैं और बाकी जो देशभक्ति के गाने होते हैं उनसे पैट्रियोटिक फीलिंग क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम लोग भूले ना कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हमारे देश के लिए कितना स्ट्रगल किया है। नेक्स्ट वी हैव रिपब्लिक डे। तो इंडिया डेमोक्रेटिक बना था 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन के याद में हम रिपब्लिक डे दिन मनाते हैं, ठीक है। फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय स्पेशल परेड दैट इज टेकन आउट इन न्यू दिल्ली। इस फेस्टिवल को एक स्पेशल तरह की परेड से मार्क किया जाता है। रिपब्लिक डे वाले दिन एक स्पेशल परेड की जाती है जो कि न्यू दिल्ली में होती है। जो मेन फंक्शंस हैं इसके वो राजपाथ न्यू दिल्ली के अंदर होते हैं। जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो सैल्यूट करते हैं परेड में, ठीक है। द आर्म फोर्सेज ऑफ आवर कंट्री शो देयर स्ट्रेंथ इन द परेड, यानी कि वो फुल ऑफ पोटेंशियल से परेड को करते हैं जिससे हमारे जो इंडिया की विल पावर है उसका पता लग सके। देयर आर कलरफुल टेबलॉक्स ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द परेड इन दिल्ली। ओके, बहुत सारे डांसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बहुत सारे स्कूल्स इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। चिल्ड्रंस जिनको अवार्ड दिया जाता है ब्रेवरी का आर टेकन अराउंड ऑन एलिफेंट इन द परेड, यानी कि परेड में एलिफेंट्स भी निकाले जाते हैं। और ये जो सेलिब्रेशंस है रिपब्लिक डे को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मार्क करते हैं, ठीक है। और जो चिल्ड्रंस है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फ्लैग को स्कूल में होस्ट कर, यानी हर स्कूल में नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है विच इज मार्किंग द डे ऑफ रिपब्लिक डे। ओके, नेक्स्ट वी हैव गांधी जयंती। तो गांधी जयंती एज द नेम इज सजेस्टिंग इट इज समथिंग रिलेटेड टू गांधी जी। सो ऑब्वियसली गांधी जयंती is celebrated on the birthday of Gandhi Jayanti. Okay, so the full name of Gandhi ji was Mohammed Das Karamchand Gandhi. So on the birthday of him, we used to celebrate this festival. His birthday on 2nd October. On this day, we used to celebrate Gandhi Jayanti. Okay, and the entire nation pays homage to Mahatma Gandhi on this day. Prayers of all religions are chanted on Samadhi of Mahatma Gandhi at Rajghat in Delhi and different parts of the country.
जो रिलीजियस प्रेयर्स हैं वो महात्मा गांधी जी की समाधि में निकाला जाता है राजघाट में और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। गांधी जी यूज टू स्पिन अ चरखा एवरी डे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिम, पीपल स्पिन द चरखा एंड सिंग सम ऑफ हिज फेवरेट भजन्स ऑन दिस डे, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा गांधी जी तो ऑलमोस्ट रोज जो है चरखा करते थे, इसलिए जो हमारा पहला इंडियन फ्लैग था उसमें भी उन्होंने चरखा का सिंबल यूज़ किया था, जो हमारा सेकंड फ्लैग था, ठीक है। और इसी रिस्पेक्ट में जो हम लोग हैं वो चरखा चलाते हैं और अलग अलग भजन गाते हैं इस दिन, ठीक है, उनके डे को और उन्हें याद करते हुए। बहुत सारे लोग हैं वो प्लेज करते हैं टू लीड नॉन वायलेंस। आपको पता है कि जो गांधी जी थी वो सत्याग्रह को बहुत फॉलो करते थे। सत्याग्रह का मतलब है नॉन वायलेंस से अपनी बात कहना, अपने हक के लिए लड़ना, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। तो इसीलिए वो जो लोग हैं वो परेड करते हैं नॉन वायलेंस के लिए और महात्मा गांधी की सच्चाई से रिलेटेड उसे प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जो बर्थडे है पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया, यानी कि जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को, इसलिए इसे चिल्ड्रंस डे बोला जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। जो बर्थडे है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर इज टीचर्स डे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट पीएम हमारे इंडिया के, तो कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे अपने टाइम पर, तो इसीलिए इन्हीं की याद पे 5 सितंबर को इनका बर्थडे आता है, तो इसी दिन हम इस टीचर्स डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस। Okay, so we are going to do some exercises to boost up our knowledge and clear our concepts more better. So let's start. चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ऑन, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? सो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर, जब जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उनका बर्थडे होता है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। होली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोला जाता है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सीजन के चेंज होने का बताता है, ठीक है। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है, बिहू असम का फेस्टिवल है और ओणम केरला का फेस्टिवल है, ठीक है। लॉर्ड राम डैश अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स एग्जाइल, तो लॉर्ड राम जो थे वो वापस आए थे अयोध्या अपने 14 साल के वनवास के बाद, ठीक है। और इसी की याद में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ऑब्वियसली इसी की याद में मनाया जाता है दशहरा, ठीक है। आई एम सॉरी, दशहरा नहीं, दिवाली, सॉरी। ओके, गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन, गांधी जयंती को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं जब मोहनदास करमचंद गांधी जी का बर्थडे होता है, विच इज ऑन 2 अक्टूबर। ओके, पीपल गो टू मॉस्क्यूज एंड ऑफर, पीपल जो है मस्जिद जाते हैं और ऑफर नमाज, यानी कि वो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। ओनम इज सेलिब्रेटेड ऑन, ओनम को जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। एम आई क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन, सब टिक द करेक्ट ऑप्शंस। Independence Day is celebrated on 15 August every year. It is the right answer. Independence Day is celebrated on this particular day. Diwali is called the festival of colors. No, Diwali is called the festival of lights, not colors. Red Fort is in New Delhi. Red Fort New Delhi में है, so this is right. Pongal is the harvest festival of Assam. No, this is not the right answer. यहाँ पे बिहू आता है, बिहू असम का फेस्टिवल है। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ओके, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स? फेस्टिवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सो फेस्टिवल्स गिव अस प्लीजर and we used to wear new clothes, we make sweet dishes, we used to celebrate it, and we do a lot of enjoy with our friends, relatives and friends. So this is how festivals give us enjoy, give us a kind of entertainment and peace. This is what you can write. What are the harvest festivals? Harvest festivals are those festivals which marks the change of season, like summer to winter or winter to summer, as we have also seen so many examples of it. So you can write any one of examples and a definition of it. Next, how is Eid celebrated? So Eid celebrate, so first of all you have to write that Eid is a religious festival which is celebrated by Muslims. Muslims used to do a fast from sunrise to sunset. After that they celebrate Eid festival, okay, on which they used to prepare a special kind of dishes, savaiya. They used to hug each other and say Eid Mubarak. Okay, this is how they used to celebrate this festival.
Okay, after that, how is Diwali celebrated? Diwali कैसे celebrate की जाती है? So you can write Diwali is the festival of lights. People used to do candles and all. Okay, so, to enlighten everything on ठीक है. So these are some points which you can write from this particular answer. So here our chapter completes. I hope you understood the chapter. Thank you.